देश रे पधारो मारे देश। केसरिया बालम आओ पधारो मारे देश। देश रे पधारो मारे देश। केसरिया पधारो मारे देश। देश रे पधारो मारो देश। केसरिया देश रे पधारो मारे देश। केसरिया देश रे पधारो मारे देश। केसरिया पधारो मारे देश। देश रे पधारो मारे देश। A very big round of applause everyone. And I welcome all the parents and all the dignitaries on behalf of Santa Kids. A very big round of applause for all of you. So I would like to inform you all that among us we have one guest of honor, Mrs. Prachi Upadhyay, the Director of Max Sport Education. A big round of applause everybody for Mrs. Prachi Upadhyay. So
now I would like to tell you all that today it is not just an annual function. It is the expression, it is the joy of the children which we will do today, which we will see today actually. We do not have to judge, we just have to cheer for their confidence with which they are practicing day and night for their performances. So a very big round of applause for all the children waiting out there to show their performances to all of you. A very big round of claps everyone please. Let's cheer our children with so much pride. As we all know कि किसी भी फंक्शन कोई भी कार्यक्रम हम करते हैं उसकी शुरुआत हमेशा भगवान को याद करके करते हैं. So to begin this joyous function, I would like to request all the dignitaries to please come to the stage for the ceremonial lamp lighting ceremony. Please ma'am, please sir, ma'am please come to stage. A very big round of applause everybody. Now I would request all our dignitaries. Sir, to please come forward and accept the token of respect from our school. Please everybody, a very big round of applause. Despite such busy schedule, sir has made out some time to come to the function. Please, a very big round of applause, everybody. Now, I would request Sanju Sachdev ma'am to please come forward and accept the token of respect from us. Please clap for Sanju ma'am, everybody. Now we would like to invite Prachi ma'am to please come forward and accept the token of appreciation and respect. All of them had made out some time from their busy lives to come. So please clap for them and clap for ourselves and our children. I would just like to share a few words. Santa Kids, जिसके function में आप आए हैं, it is not just a name now. It has become a brand, and the very mind behind the Santa Kids brand are these two people. They had a vision. इनको बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना था. They had this academic vision in their mind and youthful brilliance they wanted to create. अब इनके बारे में मैं ज़्यादा क्या ही बोलूँ, ये खुद यहाँ हैं. So I would request Pankaj sir to please come forward, and we would like to hear from the man himself that what was the idea behind Santa Kids. Please a very big round of applause everybody.
Thank you very much. First of all, welcome all of you on the behalf of the Santa Kids family. Uh, it's a long journey actually. If I wanted to share, so before sharing this journey, I would like to mention a special person's name, Ms. Sanju Sadve, who is from Bikaner only. She is the co-founder and chairwoman for the Santa Kids, and she is actually the backbone of the Santa Kids group of companies. We started with one school and 24 kids way back in 2010. And the rest is the history. Right now we are having 500 plus schools in India and outside of India. एक स्कूल 24 बच्चों से स्टार्ट करके आज 500 प्लस स्कूल्स प्री प्राइमरी और प्राइमरी इवन नाउ वी हैव रीच्ड टिल secondary schools as well across India in 16 states. So this is our journey. It was not easy, बहुत tough था, but we were having a vision, and unique vision कि हाँ हमें कुछ ऐसा करना है जो बच्चों को कुछ बेहतर दे पाए, different दे पाए. Those who made this particular company, including me, including Sanju ma'am, every second person is a doctor, engineer, scientist, IT professionals. Earlier we were working with some multinational companies in India and outside of India. We were in very high-flying job. We left our job in 2010. We started with some unique ideas. We researched on 122 schools before starting the Santa Kids. 122 स्कूलों को हमने स्टडी किया, कैसे हमने वर्कआउट किया. It is India's first brain school with DMI technology. What exactly the DMI technology? आपको सुनील सर ने बताया होगा, संजू मैम और इसके बारे में ब्रीफ करेंगे आपको. बट कुछ ऐसा करना था जो दूसरों से इट मस्ट बी डिफरेंट, इट मस्ट बी यूनिक. तो हमने कोशिश की. आज इनफैक्ट बीकानेर वी आर हैविंग 4 schools, राजस्थान वी आर हैविंग 300 प्लस schools. सो ये जर्नी एक दिन में नहीं हुई. इट टुक 16 years, 16 साल लगे हमें एक स्कूल से लेके 500 schools तक पहुंचने के लिए. और हमारा एक ही मिशन था कि हमें कुछ ऐसा देना है जो बिल्कुल डिफरेंट हो. मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि ये बच्चों का फंक्शन है, लेकिन आखिर में मैं ज़रूर जब फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो बीच में अगर मुझे दोबारा मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों को एक कहानी ज़रूर सुनाना चाहूँगा. और मैं सुनील सर और मैम से बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ मुझे बाद में ज़रूर मौका दें, लेकिन अभी क्योंकि इट इज़ टाइम फॉर किड्स, वो बच्चे वेट कर रहे होंगे रेडी होके, तो पहले उनको मौका देते हैं, उनके फंक्शन देखते हैं. थैंक यू सो मच सुनील जी एंड उनकी टीम के लिए एक बार जोरदार से तालियां. और स्पेसिफिकली इट्स अ बिग थिंग कि संजू मैम के लिए भी, क्योंकि वो बीकानेर से स्टार्ट करके अपनी जर्नी और आज वर्ल्ड वाइड शी इज़ हेडिंग ऑलमोस्ट 8-10 कंपनीज, इंटरनेशनल कंपनीज. तो आप लोगों के लिए भी एक प्राउड की बात होगी कि आपके यहाँ की एक बेटी यहाँ से निकल के पूरे इंडिया लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे शी इज़ डूइंग समथिंग. Thank you once again for calling us. It's a great, pleasure to be here with you guys. Thank you so much. Thank you so much, sir, for your words of wisdom. I did not take much time, just 2 minutes of Sanju ma'am, because जैसा सर ने बताया कि मैम बीकानेर से हैं, and सर ने सच बोला that she is the backbone. एजुकेशन के अलावा भी मैम इज़ इनटू सो मेनी थिंग्स. मैंने पढ़ा था मैम के बारे में थोड़ा, एंड इट इज़ रियली ऑनर टू हैव यू मैम. जस्ट 2 minutes, इफ यू कुड जस्ट कम एंड शेयर अ फ्यू वर्ड्स विद द पेरेंट्स जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं आपकी स्कूल में. सो इट विल बी एन ऑनर फॉर देम टू. प्लीज़ जोरदार तालियों से स्वागत करें. Thank you very much. Very good afternoon to everyone. And thank you so much for calling me here, जहाँ से मैं belong करती हूँ. और it's just an honor, not only honor, it's a proud moment to stand in front of you and speaking today. क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ रही थी तो मैं भी वहाँ पे सबसे पीछे ही बैठती थी. और ये विज़न था सैंटा किड्स को स्टार्ट करने का, क्योंकि जब मैं पीछे बैठती थी तो मेरी तरह बहुत सारे बच्चे पीछे भी बैठते थे, राइट. और पीछे बैठते बैठते कॉन्फिडेंस ज़रूर से था कि जब भी कोई प्रोग्राम स्कूल के अंदर होता था, आई वांटेड टू कम फॉरवर्ड एंड स्पीक इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. बट हमारे टाइम के एजुकेशन सिस्टम में जो बच्चे हमेशा आगे रहते थे उन्हीं को ही हमेशा चांस मिलता था. जो पीछे रहते थे उन पे कभी भी टीचर या तो ध्यान नहीं देती थी या उनको कभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं देती थी. तो सैंटा किड्स स्टार्ट करने के पीछे विज़न ही यही था कि बच्चों के हिडन टैलेंट
और इनबॉर्न पोटेंशियल को पहचान के उनके ऊपर वर्किंग करना। क्योंकि ABCD सभी पढ़ाते हैं, आप भी पढ़ के आए हैं, सब पढ़ के आते हैं, बट ABCD पढ़ना, सीखना, सिखाने में कितना फ़र्क है, और जब बच्चा सीख जाता है तो उसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करे, दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो while starting the Santa Kids, we have observed like what kind of lacunas, what kind of lackings we were having in our education system, not in education system but the deliverance part, कि delivery किस तरीके से हो रही है, बच्चों में inculcation किस तरीके से हो रहा है, उन सारे parts पे हम लोगों ने working किया, and we have come up with the school which called the Santa Kids in year 2010, and आज राजस्थान की नंबर 1 कंपनी है, not only in Tier 1 cities like जयपुर, बैंगलोर, दिल्ली हम लोग स्कूल्स रन कर रहे हैं, बल्कि Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में भी हम लोगों के बच्चे बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। एंड इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट कि इस साल हमारे स्कूल्स में सेंटियंस ने 10th ग्रेड के एग्ज़ाम्स भी दिए हैं। तो विज़न हम लोगों ने प्ले ग्रुप से शुरू किया था, और आज हमारे स्कूल्स ईयर बाय ईयर बढ़ रहे हैं, बच्चे बढ़ रहे हैं हमारे साथ में, क्योंकि बच्चों में 10th में जाके वर्किंग नहीं की जा सकती। जितना अच्छा, जितना बच्चे का इंटरनेशन पावर एक एडल्ट की ग्रास्पिंग पावर से 180% हायर होती है। सो वी हैव स्टार्टेड विद प्ले स्कूल्स, और इसमें हम लोग DMI टेक्निक के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, दैट स्टैंड फॉर डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। सो डर्मट बोलते हैं स्किन को, ग्राफिक्स बोलते हैं इसके ऊपर के प्रिंट को। हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ इनबॉर्न टैलेंट होता ही होता है, तो हम लोगों ने इस टेक्निक को हमारे सिलेबस के अंदर इंकलकेट किया है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग बच्चों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके थ्रू हम लोग टीचर्स को ट्रेन करते हैं कि किस तरीके से बच्चों के इनबॉर्न टैलेंट को पहचाने और उस बच्चे के यूनिक टैलेंट के ऊपर वर्किंग करें। क्योंकि जब अभी भी आप स्कूल्स के अंदर स्ट्रक्चर उठा के देखेंगे तो सिर्फ बच्चों की 2 ही स्किल्स के ऊपर वर्किंग होती है, दैट इज ऑडिटरी एंड विजुअल। लेकिन अगर इन दोनों स्किल्स के ऊपर कोई भी बच्चे की वर्किंग करता है तो बच्चे के आप कॉन्सेंट्रेशन लेवल को डेवलप नहीं कर सकते हैं। बट वी आर वर्किंग ऑन ऑडिटरी, विजुअल एंड काइनेस्थेटिक अप्रोच के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, जिससे कि बच्चे के अंदर ट्रायंगुलर सिस्टम ऑफ लर्निंग डेवलप होता है, एंड वेयर एवर ही वॉन्ट्स टू स्टडी, जिस भी माहौल में पढ़ेगा उसकी तीनों टाइप की लर्निंग स्किल्स एक्टिवेट होंगी। और जब बच्चे की तीनों तरीके की लर्निंग स्किल्स एक्टिवेट होती हैं तो बच्चे का दोनों पार्ट ऑफ ब्रेन एक्टिवेट होता है, और ब्रेन एक्टिवेशन होने से सिर्फ बच्चे की मेमोराइजेशन स्किल्स पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बच्चे की रिकॉलिंग स्किल्स भी स्ट्रॉन्ग होती हैं। और पेपर जो होता है जिसके बेसिस पे पेरेंट्स बच्चे को जज करते हैं कि बच्चे के मार्क्स कितने आए, तो वो मार्क्स लाना डिपेंड करता है कि बच्चा रिकॉल कितने अच्छे तरीके से कर सकता है। और पेरेंट्स जो वर्किंग करते थे आज तक, वो वर्किंग करते हैं बच्चों की याद करो, याद करो, याद करो, लेकिन याद खाली करने से कुछ नहीं होगा। जब बच्चा एग्जाम लिखने बैठता है तो उसको कितना याद रहा, उस पर अगर वर्किंग नहीं की किसी टीचर ने, किसी स्कूल ने, फाउंडेशन लेवल पर, ना कि फर्स्ट क्लास में जाके। जनरली पेरेंट्स की मेंटालिटी कैसी होती है कि फर्स्ट क्लास में अच्छे स्कूल में डलवाएंगे तो बच्चे का फ्यूचर सेफ है। नो, जब 6 साल की उम्र तक बच्चे की सीखने की क्षमता सबसे ज़्यादा थी, तब तो हमने नेग्लेजिबल ध्यान दिया बच्चे के ऊपर, ध्यान ही नहीं दिया। और जब बच्चे का फाउंडेशन ठीक हो गया, एंड व्हेन वी विल से कि फर्स्ट क्लास में वी शुड पुट हिम और हर इनटू अ गुड स्कूल, तो वो 4 साल तो निकल चुके जब बच्चे का फाउंडेशन, उसको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का टाइम था। तो ये 4 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और सेंटा किड्स में हम लोग इन्हीं 4 सालों के ऊपर बच्चों की वर्किंग करते हैं, जिससे कि बच्चे की फाउंडेशन इतनी फर्म हो जाती है कि उसको पीछे मुड़ के कभी भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो आई विल नॉट टेक मच टाइम, अदरवाइज मैं आपको पेरेंटिंग के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें बताती, बट टुडे इज़ द प्रोग्राम फॉर किड्स, एंड आई विश कि टू द सेंटा किड्स गंगा शहर ब्रांच, सुनील जी और उनकी पूरी टीम को, बिकॉज एनुअल डे इज़ नॉट अ स्मॉल प्रोग्राम। जब हम घर में एक बच्चे को भी संभालते हैं तो हमें लगता है कि कितना परेशान करता है, बट स्कूल में एक टीचर 20 बच्चों को भी संभालती है, 40 बच्चों को भी संभालती है। सो एक बार ज़ोरदार तालियां हमारी टीचर्स के लिए, क्योंकि वो बच्चों के लिए पूरे साल एफर्ट्स लगाती हैं। एंड एनुअल डे इज़ अ डे जब बच्चे आकर रिप्रेजेंट करते हैं
कि उन्होंने पूरे साल के अंदर क्या किया. So to all the aunties, to all the teachers, to the management of the Santa Kids Gangasahar, I congratulate each and everyone, and my best wishes are with you. Love to the Santa Kids and Santians. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. Now we will start the function. I would just like to request Prachi ma'am to please come forward. We'll just take a few more minutes. Now the kids are also ready and are very much eager to start the program. Please welcome Prachi ma'am with a big round of applause. गुड आफ्टरनून. मैं बहुत ही शॉर्ट में अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी. आज मुझे यहाँ बुलाकर आप लोगों ने मेरी बचपन की यादें ताज़ा कर दी. मैं आपको ये बता दूँ कि 92 में गंगा शहर में एक स्कूल जो बालबड़ी के नाम से चलती थी, वो शायद आज भी चलती होगी. मैं उसी स्कूल से हूँ, और जैसा सर ने कहा मैम बीकानेर से हैं, तो मैं भी बीकानेर से ही हूँ, और इन प्रेजेंट में बांसवाड़ा में हूँ. और जैसा कि आपको मैं छोटा सा एक इंट्रो बता दूँ कि मेरी भी खुद की स्कूल है मैक्सफोर्ड एजुकेशन के नाम से, और ज़्यादा कुछ नहीं, हमने भी आपकी तरह ही एक सपना लेकर बच्चों को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की है. और लगभग 4000 बच्चे मेरी स्कूल में CBSE स्कूल है. और एक छोटी सी बात बता दूं कि लास्ट ईयर हमारे स्कूल का जो बोर्ड एग्ज़ाम 10 बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें एक बच्चा जो हिंदी सब्जेक्ट में 100 में से 100 मार्क्स लेकर आया है, और इस बच्चे ने हमारी स्कूल को, हमारी पूरी टीम को बहुत ही प्राउड फील करवाया, और उसे अभी लेटेस्ट में CM सर से प्राइज़ भी मिला है. और ये छोटे छोटे बच्चे इन बहुत एक मतलब सपना लेकर चलते हैं. इनके अभिभावक आप बच्चों को सेंटा किड्स में, मैं ज़्यादा तो नहीं जानती स्कूल के बारे में, लेकिन यही कहूँगी कि सेंटा किड्स स्कूल जिस तरह से काम कर रहा है, अपने विज़न को लेकर, अपने लक्ष्य को लेकर जिस तरह से काम कर रहा है, उसमें आपका सहयोग भी बहुत मायने रखता है. और सुनील जी सर, अर्नेश मैम, इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस इस एनुअल फंक्शन के लिए. बहुत बहुत बधाई. बस थोड़ा सा समय लिया मैंने आपका. थैंक यू सो मच मैम. बड़े लोगों की तो स्पीच हो गई, बड़े लोगों ने इनॉग्रेट भी कर दिया प्रोग्राम को. अब हमारे छोटे छोटे बच्चे जो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे, उनकी बारी है. नाउ आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द डिग्निटरीज टू प्लीज टेक देयर सीट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड्स ऑफ विजडम एंड वट एवर थॉट्स यू हैव शेयर्ड दैट आर वेरी मीनिंगफुल टू ऑल ऑफ अस. थैंक यू सो मच. धीरे धीरे આવે ઓકે ફાઉટ હોય નહીં ધ્યાન રાખिएगा छोड़ो. Now the fun and the laughter and the धमाल begins. So इसकी शुरुआत करने आ रहे हैं Radhika and Nishika. So please put your hands together for Radhika and Nishika everybody. आपकी तालियों में जितनी ज़्यादा आवाज़ होगी, उनके परफॉर्मेंस में भी उतना ही ज़्यादा दम होगा. A very big round of applause everybody. लाइट रखो नहीं. Good evening, everyone. I am Ishika Sati of LKG class. Welcome to our annual function. Today is very special day for all of us. We are very happy that you are here with us. We have prepared songs, dances, and many performances. Please sit back, relax, enjoy the program, and thank us. Have a wonderful evening. Thank you so much. These little kids, they had so much of energy and enthusiasm. इनको देख के पता चलता है कि performances कितनी ज़्यादा power pack होने वाली हैं. Now to begin with, every
Samaram must begin with some kind of ritual and some kind of devotional thing. So इस प्रोग्राम की शुरुआत हम गणेश वंदना के साथ करेंगे. And to do the Ganesh Vandana, I would like to, just a second. Okay, sorry. So I would like to request Himanshi and Neeraj to come on the stage and they will perform a dance on Ganesh Vandana. जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें और उत्साहवर्धन करें. जोरदार तालियां इन छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए. Very good children. And now let us continue this spiritual aura. अब गणेश जी के बाद उनके पापा को भी याद करते हैं. So शिव स्तुति लेकर आ रहे हैं नीरज. नीरज का जोरदार तालियों से स्वागत करें everybody. आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि जिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा निर्विकारो कार्य विनाशी तुमी देवादिदेव जगत सर जग प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा निरंकार रूप कालेश्वर महायोगीश्वरा दयानिधि दानीश्वरा जय जटाधार अभयंकरा शूलपाणि त्रिशूलधारी ओगणी बागंबरी जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विशंभरा नाथ नागेश्वर हरो हर पाप शाप विशापतम
तपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो, क्षमा हो अपराध सब जय जयति जगतीश्वरा, जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी, ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा। Thank you so much, Neeraj. And now, our tiny nursery stars are ready to light up the stage. Ladies and gentlemen, please be ready to witness the limitless love between children and parents. आपके ही बच्चे आज यहाँ आकर के perform करने वाले हैं. I think this is going to be very overwhelming for the parents because इन बच्चों ने कुछ ऐसा prepare किया है जिसके through ये अपने parents को ये दिखा पाए that how much they love you. So please welcome our nursery superstars on stage, everybody. A very, very big round of applause, everybody, for the kids. They are so excited. Come on. चलते चलते कंधे पे अंधेरे से सीने से जैसे सर्दी में चाहत
I'm sure सभी parents emotional हो रहे होंगे. So now after this fun banter and such emotional love banter, I would like to invite our little kids give a speech on a such an important topic जो कि ना सिर्फ आज के लिए बल्कि फ्यूचर के लिए भी बहुत important है. And for this I would like to invite on stage our little superstars Naitik, Kanishka, Aman, Yashasvi, Mayank, Vanshika and Jenika. जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें. थोड़ी देर रुक जाए, वो आ रहे हैं, रास्ते में है, बस वो आते ही हैं. आज मंगलवार है, चूहे को बुखार है. आज मंगलवार है, चूहे को बुखार है. चूहा गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने लगाई सुई. चूहा गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने लगाई सुई. चूहा बोला उई उई उई, उई उई उई, उई उई उई, उई उई उई. टमाटर बड़े मजेदार, टमाटर बड़े मजेदार. टमाटर बड़े मजेदार, टमाटर बड़े मजेदार. एक दिन इसको चूहे ने खाया, बिल्ली को बीमार भगाया. एक दिन इसको चूहे ने खाया, बिल्ली को बीमार भगाया. टमाटर बड़े मजेदार, टमाटर बड़े मजेदार. चुनरी तेरी आए हाय, चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा. अरे चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा.
छोटे बच्चे हैं, इनसे बिल्कुल भी आँख नहीं मिलाना है हमको, जैसा कि इन्होंने बिल्कुल क्लियर मैसेज दिया हमें. Now, after some fun moments, we would like to bring our kids. They are going to share something very, very important. Let them settle down first. और Discussion with you all. Please welcome on stage our little superstars Kanishka, Madhav and Rishabh. A very, very big round of applause. Please show some energy. वो काफी एनर्जी दिखा रहे हैं, आपकी तालियों में तो एनर्जी हो ही सकती है. प्रणाम माँ, जी आशीर्वाद दीजिए, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। नहीं सुरू, आज से तुझे वो वाले विद्यालय में जाने की कोई जरूरत नहीं है. क्या हुआ माँ, पापा को नौकरी से निकाल दिया या हम सड़क पे आ गए? चुप कर मनहूस, कभी तो कोई अच्छी बात कर लिया कर. बेटा हम तेरा नाम इस स्कूल से कटवाकर इंटरनेशनल स्कूल में लिखवा रहे हैं. इंटरनेशनल स्कूल में लिखवा रहे हैं, ताकि पता फीस कितनी है? सोसाइटी के टॉप्स पता है कितने हैं? सबके बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं. तो माँ, मैं स्कूल में भी तो अच्छा ही पढ़ रहा हूँ. क्या तू बेटा जिंदगी भर नमस्ते पिताजी बोलेगा? बेटा मैं एक बार तेरे मुंह से व्हाट्सअप डैड सुनना चाहती हूँ, वो भी अंग्रेजी एक्सेंट में, एटीट्यूड से. चल 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 बेटा, इंटरनेशनल स्कूल तेरा इंतजार कर रहा होगा. चल नमस्ते, मैं अपने बच्चे के एडमिशन के लिए आई थी. बैठिए बैठिए बैठो बेटा. सर ये किस लिए? देखिए, जब तक आप फीस नहीं पे करती तब तक आपका बच्चा स्कूल में कुछ नहीं कर सकता. अच्छा मैडम, तब तक आप अपना क्रेडिट कार्ड निकालिए, मैं अपने स्कूल का मेन्यू कार्ड निकालता हूँ. मेन्यू कार्ड? स्कूल है या होटल? एक्सक्यूज मी, होटल से ज्यादा फैसिलिटीज है हमारे स्कूल में. ये देखिए, हॉर्स राइडिंग है, स्विमिंग पूल है, सारी एसी रूम्स है, ये है वो है. और पढ़ाई? वो तो कोचिंग क्लासेस में पढ़ लेगा ना. है चलो कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं. जी सर. वैसे आपके बच्चे का नाम क्या है? जी सुरेश मार्तन टेढ़े. व्हाट सर मार्तन टेढ़े. नो नॉट एट ऑल. देखिए, कुछ ऐसा नाम होना चाहिए कि अटेंडेंस के वक्त जब आपके बच्चे का नाम पुकारा जाए तो टीचर तक अपने सीट से उठना चाहिए. आज से आपके बच्चे का नाम होगा सुरेश ओबेरॉय. सुरू बेटा, कैसे लगा अपना नया नाम? क्या शुरू? कॉल मी सुरेश ओबेरॉय. आपके बच्चे का नामकरण किया है? जी सर. शगुन का दीजिए. जी जी सर, क्यों नहीं, लीजिए ना सर. अच्छा सुनिए. जी सर. हमारे स्कूल में एडमिशन होने के बाद आपको ये शर्मा, वर्मा, यादव, इन बच्चों से दूर रहना होगा. लेकिन सर, यादव जी की बच्ची तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आई है. अरे मैडम, गोल्ड मेडल सिर्फ शोकेस में अच्छे लगते हैं. सक्सेस की रेस में बड़े बड़े गोल्ड मेडलिस्ट भूखे रह गए. चलो कुछ काम की बात करते हैं. जी सर. आपको आपके प्रॉपर्टी पेपर्स, 3 साल का बैंक स्टेटमेंट और आपके फिक्स डिपॉजिट सबकी डिटेल्स सबमिट करनी होगी. लेकिन सर, इन सब चीजों का आपसे क्या लेना देना? अरे मैडम, ये सब देख के तो हम डिसाइड करेंगे कि हमें कितना लेना देना है. आपको आपके फैमिली के मेडिकल रिपोर्ट भी सबमिट करनी होगी. अच्छा, ताकि अगर हमारा बच्चा बीमार पड़े तो आप उसका फौरन ट्रीटमेंट करवा सके. अरे नहीं, वो तो इसलिए क्योंकि अगर आप टाइम पे फीस ना चुका पाए तो हम आपकी किडनी और खून बेच के तुम्हारी फीस वसूल कर सके.
थोड़े संस्कार भी दीजिएगा। हाँ जरूर, वादा है आपसे, ये स्कूल छोड़ने के बाद आपका बच्चा देश बदल देगा। क्या? सच? मेरा मतलब है इंडिया में तो रहेगा नहीं, पर यूके यूएस जाके रहेगा। क्यों बेटा? यस सर। सर आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। अरे मैडम, आपकी आंखें तो तब से खुली हुई है, अब बटुआ भी खोल दीजिए। हाँ सर। मैम आपकी रिस्ट वॉच। हाँ सर, क्यों रही? लीजिए। मैम बैंगल्स। हाँ, वो तो दे दूंगी। देख रहे हैं आप लोग कैसे शिक्षा का बाजार लगा हुआ है, ऐसे हमारा फ्यूचर बेचा जा रहा है। मम्मी पापा मैं आपसे प्लीज विनती करता हूँ, पढ़ाई को पढ़ाई रहने दें, अपना स्टेटस सिंबल ना बनाएं। Such a thought-provoking message और बहुत ही सही समय पे ये एक्ट हुआ। जैसे कि इस एक्ट के द्वारा इन बच्चों ने ये दिखाया कि शिक्षा कोई बाजार नहीं है। शिक्षा, एजुकेशन बहुत सारी चीज़ों का मिक्स होता है। एजुकेशन जो है दैट इज़ नॉलेज और वैल्यू। इसी के साथ मैं आप सबों को ये बताना चाहूँगी कि हमारे बीच उपस्थित है श्री श्री पूज्य श्री 108 श्री सरयू दास जी महाराज जी। मैं उनसे आग्रह करूँगी कि वो कृपया स्टेज पर आए एंड मैं सुनील तिवारी सर जी और अरनेश तिवारी मैम को प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि वो स्टेज पर आएँ एंड सर को टोकन ऑफ रेस्पेक्ट प्लीज दें। अब वेरी वेरी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज सर का प्लीज अभिनंदन करें जोरदार तालियों से। ये हमारा सौभाग्य है कि महाराज जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। उन्होंने थोड़ा समय निकाला, हम सबों को मार्गदर्शन करेंगे और हम सबों को आशीर्वाद देंगे, यही कामना करती हूँ। अपनी जगह पर करती हूँ और उनसे आग्रह करूँगी कि अगर वो कुछ दो वाक्य हमारे पेरेंट्स, हमारे अतिथिगण और हमारे बच्चों के मार्गदर्शन के लिए बोले तो हम तो आभारी रहेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों से सबसे क्षमा चाहूँगा कि मैं फर्स्ट बार 1 घंटा लेट हुआ, इसलिए आप लोगों से हृदय से क्षमा चाहूँगा। पूजनीय हमारे सुनील जी और मास्टर जी, मैंने उनको गुरुतुल्य मानता हूँ अपने जीवन में। देखो, शिक्षा वास्तव में एक जीवन में बहुत पावरफुल चीज़ है। शिक्षा क्या चीज़ होती है, मैं मंच पे आ रहा था, एक छोटी सी बच्ची के मधुर वाणी से बोल रही थी कि आप ना बर्मा में पढ़िए और ना शर्मा में पढ़िए, आप एक हो जाइए। वो छोटी सी बच्ची के वचन थे, तो इसलिए उसको बहुत बहुत बधाई उस बच्ची के लिए। वो क्या मैसेज दे रही थी कि हमको जीवन में संगठन रहना है, हमको संस्कारों को संगठन करना है, उन गुरुओं को आशीर्वाद लेना है जिन गुरुओं ने हमको जीवन दिया है, शक्ति दिया है। वास्तव में यह भारत की भूमि के लिए, यह ऋषि की भूमि के लिए हम सबको गर्व करना चाहिए। ये मेरी राम की भूमि है, कृष्ण की भूमि है, जहां कृष्ण भी पढ़ते हैं, गुरु गृह गहे पढ़न रघुराही, अल्प काल विद्या सगाई। ऐसे कृष्ण जी इस भारत की भूमि पर पढ़ते हैं, ऋषि में भी पढ़ते हैं। पूर्व समय पर यहाँ पर गुरुकुलों होती थी, मगर आज का समय गुरुकुल नहीं होती हैं, तो हम गुरु की भावना नहीं समझते हैं, गुरुओं के बारे में नहीं सोच सकते हैं। हम उनको शिक्षक बन गए, ये मास्टर है, ये मास्टर नहीं है। ऐसा नहीं है प्यारे। आपके जीवन में अगर प्रथम आपका जीवन का गुरु आपकी माँ है, तो द्वितीय गुरु आपका जीवन का जो शिक्षा देता है वो द्वितीय गुरु है आपका। इसलिए उस गुरु को सम्मान करना चाहिए प्यारे, उस गुरु की बात को मानना चाहिए।
आपको अपने जीवन में हीरो बनना है, आपके अपने जीवन में जीरो नहीं बनना है, तो अपने आप के गुरु की शिक्षा लेना शुरू कर दीजिए और उनका आशीर्वाद मानना शुरू कर दीजिए। प्यारे, आपका लक्ष्य नहीं है कि सिर्फ घर से आए और स्कूल आए और मास्टर जी ने पढ़ा दिया, ये नहीं है। आपके जीवन में जब तक आप गुरु को नहीं उतारोगे तो आप सक्सेस नहीं हो सकते हो, ये फाइनल है। इसलिए आपके जीवन में गुरु को उतारना बहुत जरूरी है। और मेरी भारत की भूमि को, मेरे संस्कारों को, मैं बीकानेर में रहते हैं, हम बीकानेर में रहते हैं, जो छोटी काशी की जो मधुर भाषा है, जो क्षेत्र है, उसको जानना पड़ेगा, भारत को मानना पड़ेगा, भारत का सम्मान करना पड़ेगा, सनातन का एक करना पड़ेगा, सनातन को मानना पड़ेगा, संस्कृति को मानना पड़ेगा। हम नहीं कहते प्यारे आप लोग वर्मा बनिए या शर्मा बनिए, अब वर्मा और शर्मा का समय नहीं है, सब एक हैं, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और हम संत महात्मा तो यही कहते हैं कि आप एक रहिए। मैं तो सुनील जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं, इतना दिव्य और भव्य बच्चों का कार्यक्रम करवाए। हृदय से आपको साधुवाद, आपकी पूरी टीम को, पूरे आपके स्कूल को भी बहुत बहुत बधाई। और आपको, आप यहाँ पर आए मातृशक्ति बच्चों के माता पिता, तो आपके लिए भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम जी का बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। ना नेक्स्ट इन लाइन हमारे बच्चे वापस तैयार हो गए अपने पावर पैक परफॉर्मेंसेस के साथ। अब हमारे एलकेजी के सुपरस्टार्स लेकर आ रहे हैं एक बहुत ही पावर पैक एंड पावरफुल परफॉर्मेंस। So please welcome everybody to our LKG superstars with a very big round of applause and please cheer them as much as we can. जोरदार तालियां इन छोटे छोटे बच्चों के लिए।
inhibited, definite, flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down. You rained down like. What Shandar confidence and coordination. These little believers truly believe in themselves. Thank you so much, children. You may leave now. Respected teachers and my dear friends, my name is Priyanshu Gaidar. Today I am going to speak on unity is strength. Unity means staying together and helping each other. When we are united, we become strong. If we work together and we can do big things. Unity makes us happy and successful. Thank you. Have a nice day. छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने इतनी कोशिश करी है, यही बहुत बड़ी बात है। ये अपने छोटे छोटे से एक्ट, छोटे छोटे से स्पीच से इतने बड़े बड़े मैसेजेस दे रहे हैं हमको, so we must learn from them. Now ladies and gentlemen, as we have seen so many performances, so many speeches, so many acts, now it's time for double dhamaka. So double the performers, double the dhamaka. Get ready for a powerful couple dance by our superstars. Please welcome them on stage, everybody, with a huge, huge round of applause. शाखों पे पत्ते गा रहे हैं, पुलों पे भंवरे गा रहे हैं, दीवार गिरने गा रहे हैं, ये पंछी गा रहे हैं। ओ बगियों में दो फूलों की हो रही है गुफ्तगू, जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है बू-बू-बू। For you
Himanshi. Please wait on stage. My name is Himanshi Sunta. We learn to read and write. Respect everyone. Our teachers tell us to be honest. School make me a good child. We follow rules and keep discipline. Thank you. मैं दक्ष आज आपके सामने एक श्री कृष्ण भगवान का भजन लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। वो कुछ इस प्रकार है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम भक्त मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तुम भक्त मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेरशबरी के जैसे खिलाते नहीं। मेरे शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। नाम जपते चलो, काम करते चलो, हर वक्त कृष्ण का ध्यान करते चलो। याद आएगी उसकी कभी न कभी, कृष्ण दर्शन देंगे कभी न कभी। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। थैंक यू। Chal
होंदी टिक टिक टाला किसे नु नखरोनी पई नहीं कोई ताड़ ताड़ कही जावे कह रहा इब्रो दी बनी तलवार कही जावे लगे पीले सूट विच पस्तौल वर्गी बोर चादर दा बत्ती बोर पार कही जावे देसी कट्टे वांगू हत्थां विच चलण नु फिरे बसके दी तू था घोड़े वलण नु फिरे तेरी गहरी रसमाइल बात कार तू वार्निंग रशिया नु करने नु गोरे गोरे हाथ कतल तेरे पट कतल बिना तेरा में जेरे फट कतल मुझे रहने दुनिया ते दिसदा नहीं कर की तो दा जच जच कर तेरी Thank you so much for calling me again and एक बार जोरदार सी तालियां इन बच्चों के लिए. Their performances were really awesome and one word they were amazing. मतलब शब्दों में नहीं बुना जा सकता है इन लोगों की परफॉर्मेंसेस को, लेकिन डेफिनेटली उन टीचर्स और उन मेंटोर्स के लिए एक बार जोरदार सी तालियां जिन्होंने ये परफॉर्मेंसेस तैयार करवाई हैं उनकी. चलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ. मोरल ऑफ द स्टोरी बाद में लास्ट में सुनाऊंगा, गौर से सुनिएगा ये सभी पेरेंट्स और जो बच्चे ये कहानी समझ सकते हैं, और फिर उसके बाद इसका सार समझाऊंगा. एक गांव था, बहुत खुशहाल था और उस खुशहाल गांव में बहुत अच्छी खेती थी, सब कुछ अच्छा था, सब अच्छा चल रहा था. अचानक एक साल उस गांव में अकाल पड़ गया. अब अकाल पड़ गया चूँकि वो खुशहाल गांव था तो सबके पास अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, तो एक साल निकल गया. अगले साल फिर से वहाँ पे अकाल आ गया. चूँकि वो खुशहाल गांव था, सब कुछ भरा पूरा था, तो दूसरा साल भी उन्होंने निकाल लिया. तीसरे साल फिर से वहाँ अकाल पड़ गया. अब जब अकाल पड़ गया तो तीसरे साल मुसीबत आई. सब लोग इकट्ठे होके गांव के अपने राजा के पास गए. राजन, ये तीसरा साल आ गया, अब तो हमारे धंधा नहीं खत्म हो गए, बहुत दिक्कत होगी, बारिश नहीं हो रही, तो क्या करें. राजा ने कहा कि भाई इस बार मैं अपने धंधा नहीं खोल देता हूँ. तो उन्होंने खोल दिए. तीसरा साल ऐसे निकल गया. अब चौथे साल फिर से बारिश नहीं हुई. सबके परेशानी हो गई. सब फिर मिलकर राजा के पास गए. तो राजा ने कहा कि भाई अभी तो मेरे पास भी कुछ नहीं, क्योंकि सारे गांव में मैंने अपना सारा राशन ऑलरेडी दे दिया है. तो चलो एक काम करते हैं कि इसका कोई तो उपाय होगा. और उपाय किसके पास होगा? तो राजा ने क्या कहा, किसके पास चलते हैं? हमारे राजगुरु के पास चलते हैं. तो वो अपने राजगुरु के पास गए. ठीक है, राजा भी अपने गुरु के पास गया पूरे गांव वालों को लेके. गुरु अपने जो कुटिया थी उसके अंदर बैठे ध्यान में बैठे थे. जब सब लोग गए वो बाहर आए. उन्होंने उनकी प्रॉब्लम ऑलरेडी गुरु को पता थी, फिर भी उन्होंने उनसे सुना कि अच्छा अकाल पड़ रहा है तो क्या दिक्कत है, समझा. तो उन्होंने बोला कल सुबह 10 बजे जो गांव का कुआं है वहाँ सब इकट्ठे होंगे, और उस इकट्ठा होने से पहले, ठीक है, सब गांव में जितने भी घर हैं उन घर का जो भी मुखिया है वो मुखिया आज रात को अपने घर से 1 लोटा दूध ले जाके उस गांव में डालेगा. और जब वो 1 लोटा दूध उस कुएं में डालेगा तो हम सुबह 10 बजे इकट्ठा होंगे और वहाँ बैठ के भजन कीर्तन करेंगे. 12 से 24 घंटे के अंदर बारिश आ जाएगी. तो सबने कहा अरे वाह, बस इतने में बारिश आ जाएगी? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल आ जाएगी. तो सब जने चले गए. गुरु अपने वापस से ध्यान में जाके बैठ गए. अगले सुबह 10 बजे सब जने इकट्ठे हुए कुएं पे और बैठ के भजन कीर्तन करने लगे. 10 घंटे हुए, 12 घंटे हुए, बारिश नहीं आई. 24 घंटे हुए, बारिश नहीं आई. 36 घंटे हुए, बारिश नहीं आई. 40 घंटे हुए, बारिश नहीं आई. 50 घंटे हो गए, 60 घंटे हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, सब परेशान कि गुरु की वाणी कैसे खाली जा सकती है. तो गुरु ने सोचा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता. गुरु को थोड़ा गुस्सा आया. गुरु खड़े हुए, राजा भी गुरु की तरफ देख रहे थे. तो गुरु ने पूछा कि सारे घरों के मुखिया खड़े हो जाइए और सबसे पहले गांव का मुखिया खड़ा हो जाए. तो गांव के मुखिया खड़े हुए. गुरु ने उनसे पूछा तुमने
अपने घर से 1 लोटा दूध ला के डाला था, तो उस गांव के मुखिया ने क्या किया, अपना सर झुका लिया। तो उन्होंने बाकियों से पूछा, आपने डाला, आपने डाला, आपने डाला, सबने अपना सर झुका लिया। तो गुरु ने पूछा क्या हुआ, क्यों नहीं डाला? तो उनमें से एक जना बोला पहले ऐसा, गुरुजी मुझे लगा कि मेरे 1 लोटे दूध से क्या फर्क पड़ता है। तो जब एक ने ऐसा सोचा तो पूरे गांव के मुखियाओं ने क्या सोचा कि मेरे 1 लोटे दूध से क्या फर्क पड़ता है। तो गांव के सभी लोगों ने, जितने भी घर के मुखिया थे, सबने अपने घर से वो पानी लाया। देखा तो गुरु ने भी देखा, अंदर उसमें पानी था, दूध तो था ही नहीं। तो हुआ क्या, मोरल ऑफ द स्टोरी और कहानी का शीर्षक क्या है कि 1 लोटा दूध। हम सबको लाइफ में क्या चाहिए होता है, सब चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। हमें ये भी अच्छा चाहिए, वो भी अच्छा चाहिए, सब अच्छा ही अच्छा चाहिए। लेकिन जब देने की बारी आती है तो हमें क्या लगता है, पहले वो ये करे, पहले वो ये करे, पहले ऐसा हो, पहले वैसा हो। देना नहीं है, सिर्फ लेना है। तो जब हम सिर्फ लेने की सोचते हैं, देंगे नहीं, तो हमें कभी भी उसके रेसिप्रोकेट में वो चीज़ें मिलेंगी नहीं। इस मोरल ऑफ द स्टोरी, ईमानदारी जो होती है ना, वो पहले घर से आती है। और पेरेंट, जैसे कि गुरुजी ने भी बोला, हम भी बोलते हैं, जो टीचर्स, एवरीबडी नो कि जो माँ होती है वो बच्चे की पहली गुरु होती है। परिवार उसका पहला स्कूल होता है, ठीक है। हमारे पास तो बच्चा बाद में आता है। तो वहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए, सबक बच्चे को सिखाया जाना चाहिए। अगर आपको किसी से ईमानदार होना है तो पहले खुद से होइए, दूसरों से अपेक्षा बाद में कीजिए। क्योंकि हमें लगता है कि सामने वाला तो हमारे साथ सब अच्छा करे, लेकिन जब देने की बारी हो तो हम उतना 100% नहीं देते हैं। तो बच्चे को मैं हमेशा इस मंच पे ये कहता हूँ, 2 किताबें कम पढ़ा लो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि उसको ज़िंदगी से लड़ना सिखाओ, लेकिन ईमानदारी से लड़ना सिखाओ। क्योंकि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। जो आज आप उसको नींव दोगे ना, क्योंकि फाउंडेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आप 100 मंजिला बिल्डिंग खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन उसकी नींव कमज़ोर रखेंगे तो कभी भी 100 मंजिला बिल्डिंग टिकेगी नहीं। उसी तरह से लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बच्चे का होता है उसकी फाउंडेशन। जो घर से उसको लेसन्स मिलते हैं, पाठ मिलते हैं, वो जो 1 लोटा दूध मिलता है ना उसको घर से, वो 1 लोटा दूध उसकी ज़िंदगी बनाता है। और वो 1 लोटा दूध होता है ईमानदारी। और वो ईमानदारी किसी भी चीज़ में हो सकती है, अपनी पढ़ाई में, दोस्ती में, रिश्तों में, बिजनेस में, हर चीज़ में। तो याद रखिए कि ज़िंदगी में जो 1 लोटा दूध है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने बच्चों को वो 1 लोटे दूध का पाठ जरूर बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। सर ने जो भी बातें बताई हम सबको ध्यान रखना चाहिए। सर ने सही कहा कि स्कूल तो बच्चे बाद में आते हैं, हम जो बच्चों को घर में सिखाते हैं, जो घर में माहौल देते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों के टोटल अपब्रिंगिंग में। तो हमको यही ट्राई करना चाहिए कि हम अपने बिहेवियर्स, अपने एटीट्यूड्स ऐसे रखें जिससे बच्चा सबसे पहले हमसे सीखता है, तो वो देखकर अच्छी ही बातें सीखे। अभी बच्चों के परफॉर्मेंसेज हो गए, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है। उससे पहले मैं स्कूल्स की तरफ से स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए वन ऑफ द टीचर्स आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज, निशा मैम। प्लीज everybody welcome Nisha ma'am with a very huge round of applause. They have done very hard work with complete dedication on their kids. Respected Principal Ma'am, dear parents, teachers, guests and my lovely students, good evening to everyone. It is a matter of great pride for me to be a part of the St. Agatha School for the past 4 years. Our school is not just a place of learning but a family where children grow with knowledge, education and value. I would like to express my heartfelt gratitude to our respected Vice Principal Sunil Tiwari sir, their constant guidance, dedications and vision under their leadership. Our school continues to achieve new heights and provide the best opportunity to our students. Today's annual function is a celebration of our students' talent, hard work and creativity. I am sure they will make us all proud. Thank you and enjoy the wonderful performance. Thank you again, Nisha Oja. Thank you so much, Nisha ma'am. And now the time has come for the prize distribution. Today, every child is a winner. We cannot say that somebody outperformed, somebody underperformed. सबने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। सबके लिए जोरदार तालियां एक बार
like to call on stage our respected dignitaries, Pankaj sir, Sanju ma'am and Prachi ma'am, along with Sunil sir and Arnesh ma'am, to please give the prize to the kids. Please everybody welcome our dignitaries on stage with a huge round of applause. Harshita Chaudhary, Ananya Maruti, Ananya Maruti, Abhimanyu. Parents, please be quick. Mayank Gedar. अभी आगे ना जा। Vanshika Soni. Yashasvi Beniwal. I'm calling out the names. Please be ready if the students are here. Karthik. ले ले। Kritika. Vedika. Yashdeep Pilania. ले फोटो ले ले। सामने देखें। सामने देखिए। Deepika Sharma. Saurabh Soni. Jenika Telang. एक बार प्लीज आप सबके बच्चे हैं, तालियां तो बनती हैं और ऐसी बनती हैं कि यदि ये तालियां इनकी खुराक है, वो एक लोटा आपके ये जो तालियां है ना, ये इन सबके लिए एक लोटा दूध है, तो प्लीज इनको ढंग से दीजिए ताकि पूरे बीकानेर को पता लगे कि यहाँ पे कोई एनुअल फंक्शन हुआ है और पेरेंट्स ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। बच्चों ने तो अपने हिस्से का काम कर दिया, अब आपको आपके हिस्से का काम करना है। थैंक यू सो मच। आयुष्मान भाटी, जीविका सुधार, कार्तिक सोनी, सामने को सर। हिमांशु सुतार, देवांश, लावण्या ओझा। तालियों में कंजूसी मत कीजिए प्लीज। लोकेश, इशिका सोनी, तरुण, भावेश, नीरज शर्मा। यस सर, सामने देखो। राधिका पंचार्य, कनिष्का पंचार्य, प्रियांशु गिधार, नैतिक पिलानिया, माधव राज सिंह, ऋषभ सोनी, रोहित, मनन सांगवान, प्रिश गोलचा, दक्ष सुराना,
दीक्षिता राविका, सर साम आयुषी हेलो विन्याख्या, सर ज्योति सर सामने सुथार, को और सामने सर देवांशी रांका, ईशा सेठिया, रेणु खुराना, आद्या तिवारी, लाइशा, Please clap for these kids, everybody. डांस करके नहीं थके, आप क्लैप करके थक गए. पार्थ पंचारिया, कृष्णा सोनी, सामने को by teachers. अभी हम टीचर्स को बुलाएंगे फॉर आवर अप्रिसिएशन टोकन. Please everybody, a very big round of applause for their energy and hard work. And Monica ma'am also, please join them. Priyanka ma'am, please join on stage. Richa ma'am, please come on stage. The performance would never have been possible if it hadn't been for the teachers. They have put their maximum efforts in preparing the kids. They deserve a huge round of applause from all of us, everybody. A very big round of applause one last time for them. Richa ma'am, please welcome Richa ma'am. Sir, please, ma'am, please. तेरी मैं ता जागा रातां रोकन पावां अखियां विचों लंदियां बरसातां मारे गिनगिनियां च तेरी मैं ता जागा रातां रोकन पावां अखियां विचों लंदियां बरसातां ओ हो I would like to request the parents to please come and join us. बच्चों ने परफॉर्मेंस दिया, आप भी थोड़ा दे दो. बच्चे नहीं शर्माए, आप शर्मा रहे हो. कोई तो वॉलंटरीली आए स्टेज पर. Yes, please come.
Danika ki mom, please come on the stage. Jivika ki mom, Himanshi ki mom. देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी देखो